Good morning, everybody. So today we are going to start with the new concept in C++. That is a name as a friend function. Okay. So friend function concept is not available in a C language. It is the part of object-oriented programming. So before going for friend function, let's see one program. So we have already seen this program, but we have just develop it with a new function, that is a add function. And here in this program we are going to perform the addition between the two objects. So there are two data members A and B, and member functions, three member functions like get data, addition, and show data. In get data, in this program we're having a variations like, and you also practice the programs in which you can bring up the various variations in the program. So here you can check in this get data function we are passing the normal variables. In this addition function we are passing the objects. अब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम भी होने चाहिए कि भाई कहीं पे हमारे वेरिएबल भी पास हो रहे हैं, कहीं पे ऑब्जेक्ट भी पास हो रहे हैं. यहाँ पे भी हम शो डेटा में ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, सपोज यू वांट. ओके, so that I will tell you in the coming concept of a friend function. So here again same function get data. In get data we are assigning the values, so value of m and n assigned to the variable a and b. And in addition function, very simple, for whatever the object you are calling the addition function, like for s3 object we are calling this function. Okay, so very simple, s3 dot a is equals to p dot a plus q dot a. Now this p is going to represent your object s1, this q is going to represent your object s2. So S1, now the value of S1 will get copied to P, and the values of S2 will get copied to Q. Okay, so that's why P dot A plus Q dot A, that is going to be stored in S3 dot A. Now it is an implicit one, so that's why S3 is not visible over here. But S3 is by default here because S3 is going to call this function. So S3 dot B is equals to P dot B plus Q dot B. Okay, so this is the addition function. This is the show data function in which we are displaying the values. Okay, and this is the main. So in main we have created three objects, that is S1, S2, S3. Then S1 dot get data. So for object S1 we are passing the values 20 and 30, and this 20 and 30 value will get assigned to data member A and B. Again for object S2 you are calling the function get data. So with the get data you are passing the values 30 and 40. So this 30 and 40 will get assigned to data members A and B for which object? For which object S2. S1 के लिए A और B की वैल्यू 20 30 हो गई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है. S2 के लिए A और B की वैल्यू 30 और 40 हो गई. फिर हमने मैसेज डाल दिया कि लेट्स परफॉर्म द एडिशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. फिर हम एडिशन वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ S3 ऑब्जेक्ट. इसलिए लेफ्ट साइड वाले जो A B रहेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? S3 रिप्रेजेंट करेगा. ओके, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग दैट whatever the object is calling the function, so those data members can be accessed directly over here. वहां पे S3 डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. किसके लिए लगाएंगे डॉट? अगर हमारे कुछ ऐसे आ रहे हैं, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये माना ये बाहर के हैं, ये सैंपल पी सैंपल क्यू, दीज आर नॉट द एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द क्लास. अब यहाँ पे देखो ये ए और बी किसके है? एक्चुअल है. ये ऐड फंक्शन क्या है? एक्चुअल है. जैसे मैंने बोला था कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कौन एक्सेस कर सकता है? ओनली द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास. तो ये ऐड क्या कर सकता है? ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. ये गेट डेटा ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. इसलिए देखो यहाँ पे ए और बी डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है. ऐड फंक्शन भी ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है. लेकिन ये पी और क्यू जो है ये बाहर की है. यहाँ पे हमारे क्लास में पी और क्यू का एक्सप्लेनेशन है क्या? वहाँ पे नहीं है. तो इसलिए इसके जो ए और बी रहेंगे वो पी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे. सो दैट्स व्हाई पी डॉट ए प्लस क्यू डॉट ए, पी डॉट बी प्लस क्यू डॉट बी. ओके, so for S3 object we came over here, we performed the addition, so we got the result as 50 and 70. Okay, so here the addition will be done. Now S3 is having a result as 50 and 70. So result after performing addition. तो ऐसे ही सीक्वेंस में हमें हमेशा जाना है. S1 डॉट शो डेटा, S2 डॉट शो डेटा, पहले S1 के वैल्यू शो करो, फिर S2 के वैल्यू शो करो, फिर सी आउट ऐसे डैश डैश डाल दो, और फिर S3 डॉट शो डेटा. तो आपका आउटपुट बहुत बढ़िया तरीके से आपको वहां पे मिलेगा. ओके, so this is the very basic program. Now we have to bring some changes in this program, because in this program our addition function is having a return type as a void. Keep in mind, in this addition function our return type is void. I will show you the output of this program just after writing the another program. Okay, so this addition function is having a return type as a void. But suppose you know that in factorial function or in power function you are returning some value. So suppose your factorial function is returning the value of f. So that time your return type over here is an integer.
Okay, in our previous program, that is in function overloading, you have seen that our addition or area functions are having addition functions are having a return type as integer. Our area functions are having a return type as a float. In this way, this add function is here. So it might be possible that after doing the addition, we must be in a position to return the object. जैसे हम normally values return करते हैं, वैसे हम object भी return कर सकते हैं. अब जब हम integer value return कर रहे तो इसका return type यहाँ पे क्या आ रहा था? इंटीजर आ रहा था. जब आप फ्लोट वैल्यू रिटर्न करें तो रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट है. अगर आप कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर है. और अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी रिटर्न कर रहे हो, कैसे करना है दैट आई विल टेल यू, बट जस्ट लेट्स क्लियर द कंसेप्ट. सपोज यू आर गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. सपोज यू आर गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड, योर रिटर्न टाइप विल बिकम द क्लास नेम. क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया तो उसका टाइप क्या बना? सैंपल बना. दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया तो उसका टाइप क्या बना? सैंपल बना. बट नाउ सपोज योर फंक्शन इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट, सो दैट टाइम व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन? द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम अ क्लास नेम इटसेल्फ. क्या बनेगा उसका रिटर्न टाइप? क्योंकि गेट डेटा फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू, सो दैट्स व्हाई void. शो डेटा फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू, दैट्स व्हाई void. Addition function is supposed to going to return the integer value, so that's why its return type is the integer. But addition function is going to return the object, so that's why उसका return type क्या बनेगा? class name बनेगा. अब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जैसे S3 ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है या और कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो उसके साथ क्या पास कर रहा है? उसके साथ 2-3 वैल्यू वहां पे पास कर रहा है. अगर यहाँ पे 2 डेटा मेंबर होंगे तो माना ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे सिर्फ हाथ या पैर ही बाहर जा रही है क्या? नहीं, मेरी पूरी बॉडी जा रही है. तो S3 भी रिटर्न होगा तो S3 क्या खुद आएगा क्या? लेकिन S3 के अंदर जो A और B डेटा मेंबर्स है वो भी उसके साथ रिटर्न आएंगे. अब कैसे आएंगे दैट आई विल टेल यू इन दिस नेक्स्ट प्रोग्राम. So very simple, only we have to make a few changes over here. That is, we have to change the return type. So let's do the change. We are passing object as an argument and return result in term of object. What happened in this program? Now here in this program we are going to perform the addition between the two objects by passing the object as an argument and return result in the term of object. Okay, हम result कैसे return कर रहे हैं? In the form of object return कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या करने वाला है? ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने वाला है. सो दैट्स वाई इसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा यहाँ पे? क्लास नेम. व्हाट इज आवर क्लास नेम? आवर क्लास नेम इज सैंपल. ये वैसे ही डेटा मेंबर्स आर ए बी. गेट डेटा फंक्शन एज इट इज, एडिशन फंक्शन एज इट इज बिकॉज ऑफ पासिंग द ऑब्जेक्ट. नाउ हियर वी आर हैविंग अ सैंपल. ओके, देन वाइट शो डेटा. ओके, वाइट शो डेटा, वाइट सैंपल एज इट इज. ये भी वैसे ही. अब यहाँ पे इसका अब ये तो क्लास नेम है सैंपल, ये क्लास नेम हो गया सैंपल, ये फंक्शन का नाम हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए जो पास किए और उसके टाइप्स हो गए, और ये जो वाइड है रिटर्न टाइप. लेकिन रिटर्न टाइप की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इसका रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप क्या बनेगा? सैंपल बनेगा. रिटर्न टाइप क्या बनेगा? रिटर्न टाइप क्या बनेगा उसका? सैंपल बनेगा. ओके, तो डोंट कंफ्यूज. स्कोप रिजोल्यूशन के पहले जो रहेगा वो है आपका क्लास नेम, और स्कोप फिर वो क्लास नेम के पहले जो रहेगा अगर वो कॉमन है, जैसे सैंपल सैंपल दिख रहा है, सो दिस फर्स्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर रिटर्न टाइप, बिकॉज नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट. दिस इज योर क्लास नेम, डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज योर क्लास नेम, दिस इज योर रिटर्न टाइप. व्हाई रिटर्न टाइप इज द क्लास नेम? बिकॉज योर फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट. वेरी क्लियर, दिमाग में फिक्स कर दो. अगर फंक्शन के सामने अगर 2 क्लास नेम है, 2 बार आ रहे, तो ध्यान में रखो कि उस फंक्शन को क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है. अब जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रिटर्न करोगे वो वाला. ओके, सो सैंपल सैंपल स्कोप रेजोल्यूशन ऐड सैंपल पी सैंपल क्यू. अब ये हो गया. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? वो S3 को तो मैंने कॉल किया. अब यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे रिटर्न S3 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको वहां पे कैच करना पड़ेगा किसी में तो भी, दूसरे एक ऑब्जेक्ट में हम लोग कैच करेंगे. यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? रिटर्न कर दिया. अब रिटर्न कौन? किसको रिटर्न कर रहे हैं? अब यहाँ पे और एक है, दैट इज अ कंसेप्ट इन पॉइंटर, जो हमारा 4th यूनिट है. अब 4th यूनिट में ऐसा है
कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, S3 ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर उसी में अगर आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, उसी में आपको क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। सो दैट टाइम, वो जान दो, मैं बाद में समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ कुछ, तो भी सिंपल टी बना लेता हूँ, टी डॉट ए। देखते हैं काम करता है कि नहीं। अब यहाँ पे सैंपल टी बनाया, टी इज योर ऑब्जेक्ट, टी इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ टी डॉट ए इज इक्वल टू पी डॉट ए प्लस क्यू डॉट ए, जैसे पहले करते थे, क्योंकि अभी ये S3 नहीं है, अभी क्या है ये, भले हम S3 ऑब्जेक्ट के लिए आए हैं, यहाँ पे हम कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आए हैं, S3 के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने तीसरा बनाया और चौथा ऑब्जेक्ट बनाया टी, टी डॉट ए, टी डॉट बी, और रिटर्न टी करते हैं यहाँ पे। ओके, और अभी नीचे जाके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सैंपल शो डेटा ऐसे रहेगा, ये मेन S1 S2 S3। अब S3 डॉट एड, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा S4। ओके, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो इन फ्रेंड फंक्शन वो आर इन अ पोजिशन, या फिर मैं इसका ही एक दूसरा वेरिएशन भी आपको बताता हूँ, और S4 इज इक्वल्स टू, okay, S3 dot add in bracket S1 comma S2. Now here we are consuming the more memory, because here we have created 4 objects now in this program. In the next program I will tell you that how we can reduce the objects. Okay, so S4 is equals to S3 dot add S1 in bracket S1 comma S2. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हम इतने के लिए जा रहे हैं वहां पे। For this step we are going to the function definition. Okay, तो S3 के लिए हम यहाँ पे आए। ओके, S3 में अंदर आके हमने टी बनाया, फिर टी डॉट ए, पी डॉट ए प्लस क्यू डॉट ए बनाया, टी डॉट बी, पी डॉट बी प्लस क्यू डॉट बी, और ये रिजल्ट किस में आया, टी में आया, टी ऑब्जेक्ट में। फिर हमने टी ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, तो आपको तो पता है कि जैसे हम रिटर्न करते हैं तो कैच करने के लिए भी उतना ही लगेगा। अगर हम छोटा बॉल फेंक रहे तो कैच करने के लिए हाथ भी ऐसे छोटा ही बनाने पड़ेगा, अगर बड़ा बॉल फेंक रहे तो बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो कैच भी किस में करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में रिटर्न करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कैच करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने S4 ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो अभी आपका रिजल्ट किस में आ रहा है, S4 में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं S3 की जगह S4 कर देता हूँ। ओके, आया समझ में। इतने स्टेप के लिए हम वहां पे गए, वहां पे कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होके टी आया, टी ऑब्जेक्ट ही है, और टी ऑब्जेक्ट का रिजल्ट किस में रिटर्न हुआ, असाइन हुआ, S4 में हुआ। अभी हम S3 में हमारा रिजल्ट नहीं आया है, अभी हमारा S4 में रिजल्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने S3 डॉट ए, यहाँ पे टी ले लिया। यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, ए और बी रहते थे, तो ए और बी को रिप्रेजेंट करने वाला S3 रहता था। पहला वाला प्रोग्राम अलग है, ये दूसरा वाला वेरिएशन अलग है, तीसरा वाला वेरिएशन और अलग आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करो कि पहले इसमें क्या हो रहा था और मैं बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूँ कि पहले इसमें हम S3 के थ्रू इसको कर रहे थे, और यहाँ पे ए और बी लिखा था, वहां पे रिटर्न वाला कंसेप्ट नहीं था। ओके, और इस प्रोग्राम में हम भले ही S3 के लिए आए हैं, लेकिन हमने अंदर में आके क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं तो कैच भी हम किस में कर रहे हैं, एक चौथे ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, S4 में हमने कैच किया। ओके, और फिर डिस्प्ले S3 में तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी S3 का तो एडिशन वहां पे हुआ ही नहीं है, ए नहीं है, वहां पे टी है, तो इसलिए S3 में रिजल्ट नहीं। अगर आप यहाँ पे S3 में रिजल्ट डिस्प्ले करके देखोगे तो आपको कुछ दूसरा ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ एक करके, S3 डॉट शो डेटा, और फिर S4 डॉट शो डेटा। अब करके देखते एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो और ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको अलग अलग प्रोग्राम के लिए भी बना सकते हैं, मैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दूसरे इसके बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे को। सी
let's perform addition between objects. So this first is for s1 dot get data, this is for s2 dot get data, and now this third is having a garbage values for s3 dot get data. वो मैंने आपको दिखाने के लिए ये किया था कि भाई s3 में तो कुछ हुआ ही नहीं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे तो s3 और s3 का कुछ कंसर्न ही नहीं है। a अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू p डॉट a प्लस q डॉट a रहता था, b इज इक्वल टू p डॉट, भले आपने बना के रखा है ये ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट बना के रखा है, लेकिन नीचे यूज नहीं किया, आपने सिर्फ क्या लिखा, a इज इक्वल टू p डॉट a प्लस q डॉट a, b इक्वल टू p डॉट b q डॉट b, और आपने रिटर्न t भी करते थे तो t में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि t के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन किए ही नहीं। अभी यहाँ पे t के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसलिए t की वैल्यू किस में गई, s4 में गई, और अभी s4 में आया 50 प्लस 70, तो ये जो है ये गार्बेज बन रहा है। तो मैं यहीं पे चेंज करता हूँ इसको, तो देखो आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। देखो 20 प्लस 30, 30 प्लस 40, 50 प्लस 70। ओके, क्योंकि हमने s1 डॉट शो डेटा किया तो उसके 20 30, s2 डॉट शो डेटा किया तो उसके 30 40, फिर डैश डैश डैश, और फिर हमारा रिजल्ट किस में रिटर्न हुआ, क्योंकि इसके लिए हम गए थे, और हमारा रिजल्ट किस में आया, हमने वहां पे t के ऊपर कैलकुलेशन किए। ओके, और t को रिटर्न किया तो t किस में असाइन हुआ, s4 में असाइन हुआ है t ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे हमने फैक्टोरियल में किया है, फंक्शन के 4 टाइप्स देखे थे हमने, नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप वगैरह वगैरह, तो उसमें ये सब वेरिएशंस हमने देखे थे। अभी आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, घर पे कुछ काम नहीं होगा तो प्रैक्टिस करो। ओके, तो ये टी ऑब्जेक्ट s4 में हुआ, और फिर मैंने s4 डॉट शो डेटा किया, तो s4 डॉट शो डेटा किया तो 50 प्लस 70। नाउ s3 डोंट हैव अ रोल ओवर हियर। व्हाट इज द रोल ऑफ s3? s3 इज ओनली टेकिंग अ कंट्रोल फ्रॉम दिस फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन। s3 क्या काम कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ फंक्शन कॉल को फंक्शन डेफिनेशन पे लेके जा रहा है। ओके, so I hope you got it. Now reducing the objects. और एक कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कोई भी प्रोग्रामिंग आप सीखोगे तो उसमें कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि सी में क्या हो रहा था, सी प्लस प्लस में क्या हो रहा है, और प्रोग्राम में भी आपको कंपैरिजन करना है कि पहले इसमें क्या हो रहा था। और बहुत ध्यान से, मैंने बोला है आपको कि आप नोटबुक और पेंसिल साथ में रखा करो। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर वो कि बाद में मैं रिमाइंड करूंगा, तो बाद में रिमाइंड कभी कोई चीज होती नहीं है, हमेशा बात ध्यान में रखना। तभी के तभी नोट डाउन करना पड़ता कि भाई पहले वाले प्रोग्राम में ये हुआ था और ये वाले प्रोग्राम में भी ये हो रहा है। तो ये आपका क्लास सैंपल, इसमें 3 स्टेप्स है। पहले तो हमने पासिंग किया ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न रिजल्ट इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बाय reducing the number of objects. अब ये वाले प्रोग्राम की हमको बार बार जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन में ऐसे कुछ करने वाले हैं, या फिर और भी दूसरे कंसेप्ट्स हैं। तो ये नेम स्पेस हो गया, गेट डेटा हो गया, ये सैंपल ही रहेगा, सैंपल सैंपल, ये भी सैंपल सैंपल। तो पहले थोड़ा नीचे जाते हैं, मैं नीचे चेंजेस करता हूँ। तो ये S1, S2, S3, S4 को निकाल देता हूँ। ओके, सिर्फ मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ एक, इसको मैं करता हूँ S1 डॉट एड, और इन ब्रैकेट लिखता हूँ सिर्फ S2। ओके, और ये अभी ये भी निकाल देता हूँ। अगर थोड़ा सा ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये S3, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, S1 डॉट ऐड कर रहे हैं। ओके, S1 डॉट ऐड कर रहे हैं, और ये S2 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, माना S1 ऑब्जेक्ट ही क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। S1 ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता है उसके डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, वहां पे डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट पास हुए, एक ही पास हुआ। मैं बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूँ, माइन्यूटली बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट पास हुए, S2। अब आप लोगों को पता है कि जो फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है उसके डेटा मेंबर हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। ओके, तो चलो इस फंक्शन कॉल के लिए चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर, और फिर हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट पास हुए, एक ही ऑब्जेक्ट पास हुआ, तो एक ही ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग। अब एक आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं ये पहला वाला निकाल देता हूँ।
सैंपल क्यू रखा, सैंपल टी भी एज इट इज रहने देते, ऊपर में भी ये चेंज कर देते हैं। कितने ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्ट, ये भी एक ही ऑब्जेक्ट। अब हम कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आए हैं? S1 के लिए आए हैं। अब S1 के डेटा मेंबर डायरेक्टली एक्सेस होंगे, तो ये पी डॉट लगेगा कि यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट अभी क्या हो रहा था, S3 कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? ए और बी लिख रहे थे। जब S3 हो रहा था, मैं फिर से इसको डिलीट मार देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आएगा। ओके, पहले क्या हो रहा था? पहले क्या हो रहा था? S3 इसको कॉल कर रहा था, तो इसलिए ए और बी आए थे। अभी इसको कौन कॉल कर रहा है? S1 कर रहा है, तो S1 के लिए हमको ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट ही उसको कॉल कर रहा है। तो इसलिए S1 के लिए उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे? डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे। लेकिन Q जो है, तो Q तो है वहां पे, इसलिए Q डॉट ए लिखा, Q डॉट बी लिखा। और ये बी कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस फंक्शन पे हम किसके लिए आए हैं? S1 के लिए आए हैं। और ये बच्चा, तो ये आपके S1 की है क्या? अगर आपको S1 की करना है तो आप रिटर्न यहाँ पे S1 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर टी बनाना है तो टी के थ्रू भी आप कर सकते हो, टी के थ्रू भी कर सकते हो गया प्रोग्राम। आपको उसका भी बताता हूँ S1 का कैसे करेंगे। तो बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इट्स आवर ड्यूटी इज दैट we have to reduce the number of instructions, the number of variables in the program. We have to reduce the size of the program. और लेट ज्वाइन किया करो थोड़ा सा। अभी चेंज ध्यान में रखो कि हम कौन से इसके लिए कर रहे हैं? S1 के लिए। S1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ऐड को, तो वेरी सिंपल, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उस फंक्शन को, उसके डेटा मेंबर डायरेक्टली एक्सेस होंगे। तो S1 ने कॉल किया, इसलिए S1 के ए और बी डायरेक्टली एक्सेस हो रहे हैं। और S2 पास हुआ, तो इसलिए S2 के लिए हमने Q बनाया, उसके Q डॉट ए Q डॉट बी होंगे। और इस सैंपल का T बनाया, इसलिए उसके T डॉट ए T डॉट बी रिटर्न T होगा। तो T रिटर्न होगा तो S3 में स्टोर होगा। अब ये हमको S4 की जरूरत नहीं। इसके भी वही आउटपुट आएगा, देखो वही आउटपुट आया। ओके, नो चेंज। ओके, तो ये हो गया वेरिएशन। और दूसरा वेरिएशन इन द सेम प्रोग्राम, अब मैं वो उसमें करके बताता हूँ। ये हमारा, इसको निकाल देते हैं। यानी our role is we have to reduce the instructions in the program, but now not at this time. First you get some kind of a mastering over the language, and after that it will be feasible for you. अगर आप एकदम स्टार्ट में बोलोगे कि मुझे reduce करना है, पढ़ाई नहीं है, and you are moving towards reducing the instructions, so that is not the part of the programming. पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद उसको क्या करो, ये करो। अभी इसका नेक्स्ट वेरिएशन। तो ऐसे एक एक प्रोग्राम में अगर आप कोई भी प्रोग्राम लो, और अभी मैं ये आपको स्कूलॉजी में डालूंगा, तो आप लोग दूसरा असाइनमेंट ले लो, और दूसरे असाइनमेंट में क्या करो कि आप दूसरा प्रोग्राम लो और दूसरे प्रोग्राम के ऐसे 4 वेरिएशन बनाओ। कोई भी प्रोग्राम ले सकते हो। अभी इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे? ये सैंपल टी हमने लिया था, ये सैंपल टी को मैं निकाल देता हूँ। और अभी सैंपल टी नहीं है, तो ये भी नहीं है। और अभी हम कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आए थे? यहाँ पे S1 के लिए आए थे। और रिटर्न किसको करेंगे? अब जिस ऑब्जेक्ट में आए उसमें हमको अगर रिजल्ट रिटर्न करना है, अब यहाँ पे डिस्प्ले बराबर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले बराबर नहीं आएगा। तो अगर आपको, अब मैं वो भी बता देता हूँ कि डिस्प्ले बराबर क्यों नहीं आएगा। तो पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं, रिटर्न S1 करके देखते हैं। लेकिन S1 रिटर्न होगा क्या, तो पहले हम देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखो क्या किया, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 को कर रहा है। ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 को कर रहा है। ये किसका है? S1 का ही है। बी क्या हो गया? S1 का हो गया। अब यहाँ पे देखो S1 में पहले वैल्यू क्या है? 20 है। अभी वो क्या बन जाएगी? 50 बन जाएगी। बी में अभी क्या वैल्यू है? 30 है। वो अभी क्या बन जाएगी? 70 बन जाएंगी। माना ये 20 30 आपके रिप्लेस किससे हो गए? 50 70 से हो गए। तो जब आप डिस्प्ले देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? 50 70 30 40 डैश 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 और ये 50 70, क्योंकि आपकी S1 की वैल्यू क्या हो गई?
चेंज हो गई, जो पहले वाली वैल्यू थी वो अभी वहां पे नहीं है, दैट विल गेट रिप्लेस्ड। तो रिटर्न S1 किया, S1 रिटर्न कर सकते हैं क्या, वो एक बार देखता हूँ, और S1 रिटर्न करके उसका रिजल्ट जाएगा S3 में, और फिर इस तरीके से। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं व्हाट हैपेंड। तो ऐसे ही जब आप प्रोग्रामिंग के ऊपर एक्सप्लोरिंग करोगे तो हमको हर तरीके से, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कॉलेज से स्मृति टॉकीज जाना है तो नंबर ऑफ वेज आ देगा, तो वो हर रास्ते हमको तो वैसे पता करने आते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का भी वैसे करते आना चाहिए हमको। एरर आ रहा है, रिटर्न S1 नहीं बोल रहा है, वो रिटर्न S1 को नहीं कर सकते, was not declared in this, पता है बराबर है उसको, क्योंकि S1 तो वहाँ पे है ही नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हम S1 के लिए यहाँ पे आए थे, यहाँ पे S1 रिटर्न नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सो दैट इज वन मोर कंसेप्ट इन अ पॉइंटर, दैट इज इन योर फोर्थ यूनिट। तो जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, अगर उसी ऑब्जेक्ट में अगर आपको रिजल्ट रिटर्न करना है तो समझ गया, जो ऑब्जेक्ट ने आपको इस फंक्शन को कॉल किया, S1 ने कॉल किया और S1 में ही आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, तो उसके लिए एक रिटर्न स्टार दिस नाम का कंसेप्ट। माना जो ऑब्जेक्ट ने S1 ने कॉल किया तो रिजल्ट भी किस में रिटर्न करना है, S1 में ही करना है, तो फॉर दैट यू आर हैविंग अ कंसेप्ट दैट इज रिटर्न स्टार दिस। देखते हैं अभी रिटर्न स्टार दिस करके, सिर्फ मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट थोड़ा बराबर नहीं आएगा, लेकिन हम पहले देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बट आउटपुट इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, क्योंकि वो वैल्यूज रिप्लेस हो गई। अब देखो, मैंने बोला था कि S1 में रिजल्ट स्टोर हो गया तो 50-70 हो गया, 30-40 हो गया, और अभी S3 में तो कुछ है ही नहीं। वहां पे S1 में तो अभी 0-0 बता रहा है, क्योंकि S3 का बता रहा है, हमने S3 डॉट शो डेटा था हमारा लाइन में, तो S3 डॉट शो डेटा में तो कुछ है ही नहीं, वहां पे 0-0 वैल्यू बता रहा है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कंट्रोल X, इसको हम एडिशन के पहले ही डिस्प्ले कर देते हैं, या फिर इसके पहले कर देते हैं, उसके बाद एडिशन हो जाएगा। और ये S1 डॉट जो शो डेटा है, यहाँ पे हम फिर से S1 कर देते हैं। तो समझ में आया, यहाँ पे आपने S1 के लिए वैल्यू रीड की, यहाँ पे आपने S2 के लिए वैल्यू रीड की, फिर आपने बोला लेट्स परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, फिर आपने क्या कर दिया, डेटा डिस्प्ले। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन डिस्प्ले कर रहे थे S1 और S2 को। अभी हमने क्या कर दिया, वो एडिशन होने के पहले ही S1 S2 को डिस्प्ले कर दिया। माना ये अभी क्या बताएगा आपको, यहाँ पे देखो पहले क्या बता रहा था, ये 50-70 बता रहा है, और हमारा क्या आना चाहिए 20-30। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही गेट डेटा वैल्यूज पास किए, उसके बाद मैसेज डाल दिया, उसके बाद S1 S2 के वैल्यू डाल दिए, क्योंकि अभी S1 में वैल्यूज रिप्लेस होने के हैं। उसके बाद एडिशन परफॉर्म किया, और रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन इज, और ये सी आउट, और फिर से S1 डॉट शो डेटा। तो यहाँ पे 20-30, यहाँ पे 30-40, फिर एडिशन, फिर 50-70 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा 50-70। सो रन करते हैं। तब तक ये प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, या फिर उधर से कॉपी करूंगा इधर। So you can check the output. देखो, let's perform addition between object S1 plus S2 is, so 20 plus 30, 30 plus 40। अब ये result after performing addition is, और ये थोड़ा सा आउटपुट हमारा गलत हो गया। ये रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन भी पहले ही डाल देना चाहिए, या फिर वो मैसेज नहीं रहा तो भी चलेगा। कंसोल का डिस्प्ले भी, दैट इज आवर ड्यूटी, दैट हमारा डिस्प्ले भी बराबर सही आना चाहिए। देखो, लेट्स परफॉर्म द एडिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट S1 प्लस S2 इज, उसके बाद लिख दिया रिजल्ट आफ्टर परफॉर्म। अब ये मैसेज बराबर हम डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिए। सो 20 plus 30, 30 plus 40, 50 plus 70। सो व्हाट आई सेड, व्हेनेवर
वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग योर फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट आपका फंक्शन कॉल कर रहा है, S1 एडिशन को कॉल कर रहा है, और अगर उसी में अगर आपको रिजल्ट क्या करना है, रिटर्न करना है, तो हमने रिजल्ट भी किसने, यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिर्फ रिटर्न स्टार दिस लिखा। किस केस में, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है, अगर उसी ऑब्जेक्ट में अगर आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, सो फॉर दिस यू कैन राइट अ स्टार धिस। माना जिस ऑब्जेक्ट ने, this object, whatever the object calling this function, in the same object you have to return the result. So star this object, this function, तो this pointer करके है एक 4th यूनिट में। okay, this pointer is not available in a C language, that is a part of C++। तो हमारे लिए वेरी सिंपल, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया उसी ऑब्जेक्ट में अगर आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे रिटर्न स्टार दिस। ये तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कौन से, सैंपल ही हमारा क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है ना, तो इसलिए सैंपल। और यहाँ पे एक चेंज, S1 को हमने S1 के थ्रू वहां पे आए, तो ये A और B किसका रहेगा, S1 का रहेगा, और रिजल्ट भी हम किस में ले रहे हैं, A और B में ही ले रहे हैं। So I hope you understood this program. Suppose you got this video, you can again check it. लेकिन क्लास में ही आप थोड़ा कंसंट्रेशन रख के, थोड़ा सा अपने काम वाम छोड़ के, जैसे वहां से मुझे ट्रैक्टर की आवाज आ रही थी, वो शायद खेती में काम करते रहता है, तो आप लोग देखो आपको कहाँ पे काम करना, कितना सीरियसली इसको सुनना है, क्योंकि ये आगे काम में आने वाला है। अभी अगर आप थोड़ी देर ट्रैक्टर नहीं चलाते हो या फिर और कुछ नहीं करते हो, तो आई थिंक दैट विल बी फाइन फॉर यू। क्योंकि ये समझ में नहीं आया, भले डिप्लोमा तो मिल जाएगा, लेकिन वो डिप्लोमा करने के बाद बी को भी एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन वो बी करके कुछ काम की चीज नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आप लोग देखो, आप लोगों को समझ में आता है, अभी आप बड़े हो गए हो। यहाँ पर लिख देता हूँ, write a program to perform the addition between two objects by passing object as an argument and return result in term of object. Which called write a program to perform the addition between two objects by passing object as an argument and return result in term of object which called that function. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ star this. Okay, so I hope you got it. Now next, move towards the another, now the friend function. फ्रेंड फंक्शन का पूरा बेस था, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन में सब ऐसे ही प्रोग्राम आने वाले हैं। फ्रेंड फंक्शन, द फंक्शन which is not a member of a class but want to access private data members, that function is called as friend. So I hope from the definition you got it. The function which is not a member of a class, function क्या है, that is not a member of a class but still want to access the private data members of that class, such function is called as a friend function. Very simple example, last time I quoted you that while studying the access specifiers, that suppose there is one refrigerator, now these are the summer days and you have keep one refrigerator outside of your home for giving a cool water to the public peoples. So that refrigerator is acting as a public resource. Okay, now suppose the same refrigerator is placed inside your home, so is it a public? No, that is only the private one. Means whatever the members are of your home, only they are having access to that particular refrigerator. घर के जो लोग हैं, अगर आपने रेफ्रिजरेटर घर के बाहर रख दिया तो उससे कोई भी पानी ले सकता है, अगर आपने घर के बाहर रख दिया तो। और वही अगर आपने घर के अंदर रखा है रेफ्रिजरेटर,
तो आपके घर के जो प्राइवेट लोग हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी थर्ड केस, अभी अगर आपका कोई फ्रेंड है, अभी जैसे हमारे फास्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, अगर हमारा कोई फास्ट फ्रेंड है एकदम, वो अगर हमारे घर पर रहने के लिए 2 दिन के लिए आता है, तो क्या वो हमारे रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं ले सकता है पीने के लिए, या फिर बार बार आपके मम्मी को जाना पड़ेगा या फिर आपको मांगेगा? तो बार बार अगर उसको दिन में अगर बहुत बार पानी लग रहा है, दैट इज अ प्राइवेट वन, तो फिर क्या होगा? भले ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ योर क्लास, he is not a member of your home, but still as he is or he or she is your fast friend, so he is having access to that private members. But for that, what is required? For that, the condition is that whoever the member is there, that member should be the friend of your home. वो क्या होना चाहिए? घर का क्या होना चाहिए? वो फ्रेंड होना चाहिए, एंड दैट कंसेप्ट हियर इज कॉल्ड द फ्रेंड फंक्शन. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेकिन वो क्या होना चाहिए? हमारा फ्रेंड होना चाहिए. अगर कोई बाजू वाला भी हमारा नेबर भी है, तो नेबर भी जब तक आपके घर का फ्रेंड नहीं बनता है तब तक वो उसको एक्सेस करेगा क्या? लेकिन वो भी फ्रेंड में कैसा रहना चाहिए? फास्ट फ्रेंड रहना चाहिए. अगर आपके घर के 4 घर छोड़ के भी कोई घर है, तो वो अगर आपके फ्रेंड ही नहीं है, तो वो तो आपके बाहर का ही पब्लिक वाला ही लेंगे. लेकिन अगर उनको आपके घर की चीजें एक्सेस करना है, जैसे हम कभी शक्कर देते हैं, कभी कुछ देते हैं, वो तो हमारे घर की प्राइवेट चीजें हो गई. कभी कभी गाड़ी भी दे देते हैं, लेकिन किसको देते हैं? Those who are only the trustworthy people, they are our best friends. Only they are having the access to our private resources. In the same way, कभी कभी ऐसी चीज होती है कि भाई ऐसा एक आधी चीज जो हमारे घर का मेंबर नहीं है, but still he want to access the private data members, so that time you can make that function as a friend function. Okay? लेकिन अभी ये क्या है? ये क्या है? friend function always preceded by friend keyword. Okay, then friend function is not a member of a class. That's why while declaring it outside of the class, not required to use scope resolution operator, because it is not in scope of class. Got it? सबसे पहले तो फ्रेंड फंक्शन जब भी हम लिखेंगे तो उसके सामने क्या आएगा? फ्रेंड कीवर्ड आएगा. सेकंड थिंग, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट योर मेंबर ऑफ योर क्लास. वो हमारे घर का, जैसे हमारे घर में कोई फ्रेंड आता है तो उसका सरनेम भी आपका सरनेम बन जाता है क्या? नहीं. जैसे अगर क्लास में कोई बात करते हैं, जैसे प्रत्यय धोंड है, उसका कोई तो भी फ्रेंड होगा, प्रथमेश मिटकरी होगा या कार्तिक चौहान होगा, तो कार्तिक चौहान अगर उसके घर में जाता है प्रत्यय ढोंड के यहाँ पे रहने के लिए, तो कार्तिक चौहान कार्तिक ढोंड बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा. तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ अ ढोंड फैमिली. ओके, सो उसको अपने नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन as he is a friend of the class, as he is a friend of a Dhond family, so that's why he is having access to the private data member, private resources, whatever available in his home. Okay, but what is the case? He should be a friend. तो वहां पे मैंने क्या लिखा है? Friend function is not a member of a class. That's why while declaring it outside of the class, not required to use the scope resolution operator, because it is not in the scope of the class. Third, friend function can't be called using object. Friend function हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे. क्यों कॉल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू? बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लास. ओके, जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय को धोंड लगेगा, लेकिन कार्तिक को भी धोंड लगेगा क्या? नहीं. कार्तिक का तो कुछ अलग है, वो चौहान है, या फिर और कोई होगा तुम्हारे क्लास में, प्रथमेश है, या फिर अंशुक है, या फिर और कोई भी होगा, भक्ति है, तो उनके तो अपने अलग अलग है, बट दे स्टिल दे आर द फ्रेंड ऑफ द धोंड फैमिली. सो इट डजंट मीन दैट
लाइक उनको भी हम भक्ति धोन कहेंगे या फिर और कुछ कहेंगे, जैसे कार्तिक धोन कहेंगे या प्रथमेश धोन कहेंगे या फिर और कोई कहेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। तो ये 3 रूल्स यहाँ पे हमको ध्यान में रखने हैं फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड कि भाई क्या है फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन। सबसे पहले द फंक्शन विच इज नॉट a member of a class but still want to access the private data members, such function is called as a friend function. Friend function always preceded by a friend keyword. Friend function as not a member of a class, so while declaring it outside of the class don't require the scope resolution operator. Third case is friend function cannot be accessed using the object. Okay, I hope you got it. So let's try the program. सबसे पहला प्रोग्राम लेता हूँ क्योंकि आपको इजियर है एकदम, ये वाला प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इस पे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। और आप नीचे के सभी प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ या फिर दूसरे प्रोग्राम लेंगे अभी। डायरेक्ट या फिर जैसे फ्रेंड फंक्शन का मैं यहाँ पे से ये बता देता हूँ आपको कि जैसे हमारा फ्रेंड कीवर्ड हो गया, फंक्शन का नाम सपोज कुछ तो भी ऐड है और ऐड के बाद यहाँ पे कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है सैंपल कॉमा सैंपल, तो ये हो गया। ठीक है, ये फ्रेंड कीवर्ड आ गया इसके सामने। उसके बाद ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। कैसे करते हैं फ्रेंड फंक्शन का, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, देन हमारा फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन कैसा रहेगा, तो सिंपली ऐड, अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप वहां पे रहेगा, अगर आपका कर रहा होगा तो डिपेंड्स, और इस तरीके से आपका ये हो गया आपका फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन। नो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन। ओके, ही इज हैविंग एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ओके, और थर्ड चीज थी आपकी कॉलिंग, तो ये ऐड इन ब्रैकेट s1 s2 हो गया। ये है हमारा फ्रेंड फंक्शन कॉल। सो आई होप यू गॉट इट। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है उसके सामने क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। अब ये फ्रेंड हमारा कीवर्ड है, अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ ऑब्जेक्ट तो उसके सामने सैंपल भी आएगा। गॉट इट, ये फ्रेंड, दिस इज द कीवर्ड, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ योर फंक्शन, this is the name of a friend function, and these are whatever the values you are passing to the friend function. Okay, then this is the function friend function definition. So this is your return type of the function, this is your function name. Now here we are not using the scope resolution operator, all those things, because now you have declared this function as a friend function. Then sample comma sample, this complete is your friend function definition. And now how you can make a friend function call without using the object. Why not object? Because friend function is not the actual member of your class. Friend function is not the actual member. जो भी actual members है, only those members will be called, और वो भी only those members will be called using the object only. अब ये हमारा member नहीं है, actual घर का member नहीं है, so that's why he should not get called using the object. So I think these three things are very much important during the concept of knowing the concept of friend function. So I hope you can again check it. Friend keyword, then this is the return type, this is the function it is not a mandatory, it depends upon the problem definition whether your function, your friend function is going to return some value or not. अगर नहीं रिटर्न कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये रिटर्न टाइप, और इसको ये कर देता हूं मैं जनरल सिंटैक्स।
control syntax, print keyword, then return type, then function name, and then आपके यहाँ पे parameters or arguments, whatever you want to call. This is the control syntax. Okay, so this is friend is a keyword. After that, return type, then function name, and then the parameters. And this is the example. Okay, in the same way, आपको तो ये तो समझ में आ ही जाएगा. ये तो वैसे ही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा. Okay, and this is your friend function call. वो प्रोग्राम में रखना है. Let's implement this program using the friend function. So as I told you, so here we are not returning the result, so that's why. So this is going to be a friend. Okay, sample ऐसे रहेगा. White sample. अभी एक पहला change. यहाँ पे मैंने keyword लगा दिया. Okay. Here I have use a keyword. Okay, this is your function declaration. After that, this first function definition. अब आपको पता है कि यहाँ पे white रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं रहता. So that's why I'm going to delete it. Okay. ठीक है. ये प्रोग्राम वही वाला प्रोग्राम है. दूसरा वाला. ओके, ठीक. समझ में आ गया पहला चेंज. सो योर फंक्शन डिक्लेरेशन विल स्टार्ट विद द कीवर्ड फ्रेंड. देन आपका फंक्शन डेफिनेशन में जो सैंपल स्कोप रेजोल्यूशन था वो निकल गया यहाँ से. तो यहाँ पे क्या आ गया, वाइड सैंपल स्कोप रेजोल्यूशन निकल गया. तो ऐड डायरेक्टली सैंपल पी कॉमा सैंपल क्यू. और ये अभी देखेंगे फॉर ऑब्जेक्ट एस. और थर्ड चेंज हमने क्या बोला था कि जो ऐड फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हैं. तो ये क्या होगा, सिर्फ ऐड करके कॉल होगा. अब ऐड हो गया, ऐड S1 S2 हुआ. तो चलो हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं. तो पहले हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए. जो चेंजेस थे तीनों भी चेंजेस हमने किए. अब वो चेंजेस किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर वो जो भी एरर आएंगे वो सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग. ओके, तो हमने 3 चेंजेस मैंने क्या बोले थे. एक तो फ्रेंड कीवर्ड यहाँ पे लगाना है. ये फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया. फिर जो क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन डेफिनेशन को, तो वो सैंपल और स्कोप रेजोल्यूशन निकाल दिया. और जब कॉल करते हैं तो ये कॉल करने वक्त हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हैं. नॉट कॉल्ड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन, नॉट कॉलिंग. यूजिंग ऑब्जेक्ट. Let's start with the execution. So 3 objects created. S1 dot get data, no problem. S2 dot get data, no problem. Let's perform the addition. Okay, no problem. Now here add. So for add, we're calling this function add S1 comma S2. So let's go to the function definition. Now we're here add S1 comma S2. Okay, so S1 value will get copied to P. S2 value will get copied to Q. Okay. S1 value will get copied to P and S2 value will get copied to Q. But now here we are not coming for any object. Not come to object. Okay. Object के थ्रू हम यहाँ पे नहीं आए. तो ये किसका है पता नहीं है. ये किसका है पता नहीं है. ये B किसका है पता नहीं. ये तो ठीक है, P डॉट A प्लस Q डॉट A, P डॉट B प्लस Q डॉट B, ये तो ठीक है एडिशन के लिए. लेकिन ये A और B किसके पता नहीं है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा T. और ये आएगा यहाँ पे P डॉट A, क्योंकि वैसे तो काम करेगा नहीं. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बना लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, सैंपल T डॉट A प्लस T डॉट B. ओके, और ये बनने के बाद अभी यहाँ से रिटर्न तो व्हाइट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो रिटर्न हो नहीं रहा है.
ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वो तो टी आएगा, सिर्फ टी में वैल्यू रहेगी, लेकिन टी की वैल्यू तो हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट लाइक दिस वन, s3 इज इक्वल टू एड इन ब्रैकेट s1 कॉमा s2। माना हम ऐड फंक्शन को कॉल के लिए गए डेफिनेशन पे, हम कहाँ पे गए, डेफिनेशन पे। यहाँ पे फिर हम आए, किसके लिए आए, ऐड फंक्शन के लिए आए। अभी कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं लेके आया, वी केम हियर सिंपली विथ अ फंक्शन कॉल हियर। फंक्शन कॉल आने के बाद एडिशन करनी थी, लेकिन यहाँ पे तो तीसरा कुछ है ही नहीं, हमको तो रिटर्न भी जाना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न रिटर्न टी लिख दिया यहाँ पे। तो रिटर्न टी लिखा तो टी में वैल्यूज आ गई। अब टी की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी क्या लगेगा, क्लास नेम लगेगा। ऊपर में भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्लास नेम लगेगा। तो ये सैंपल चेंज किया क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए जो व्हाइट था उसकी जगह भी क्या आ गया, सैंपल आ गया। और मोस्ट प्रोबेबली ध्यान में रखो कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो वी हैव टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट। Okay, it is not mandatory, that depends upon the problem definition, but most of the time we have to return the object. So that's why most of the time your friend function always have a return type as a class name. तो ये sample object return हो रहा है, इसलिए sample। यहाँ पे भी हमने चेंज किया sample। मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ अगर आपको लगता होगा तो। ओके, ये फ्रेंड सैंपल, ये भी बोल्ड लो। ओके, अब ये हो गया हमारा, एडिशन हो गई, रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया तो हमने कैच किस में किया, S3 में कैच किया, और S3 में कैच किया तो फिर हमने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग। तो S1 S2 में तो उसकी वैल्यूज आई है, और S3 में अभी हमने जो किया तो उसका। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो आउटपुट आ गया, लेट्स परफॉर्म एडिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट S1 S2, रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग। या फिर से रन करके बताता हूँ, या फिर वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होंगे कि बार बार वही वही वैल्यू आ रही है, तो वैल्यूज भी चेंज करके देखते हैं। 100, इवन आप वैल्यू यहाँ से आप खुद पास भी कर सकते हो, सपोज यू वांट। ओके, सो आई होप यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। वेरी सिंपल, क्या क्या चेंजेस करना है, जो नॉर्मल प्रोग्राम ऊपर वाले प्रोग्राम में सिर्फ आपको यही चेंजेस करने हैं अभी। लाइक जहाँ पे ये था उसके सामने फ्रेंड लगाया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के फ्रेंड लगाया। ये जो हमारा ये था, तो यहाँ पे हमको सैंपल और स्कोप रिजोल्यूशन निकाल देना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के कि भाई सैंपल टी क्या क्या करना पड़ेगा अंदर, किसको कॉल कर रहे हैं हम, किसको नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैच कैसे कर रहे हैं। और ये तो है कि भाई ऐड को तो हमें विदाउट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करना है। और मैं आपको एक नेक्स्ट प्रोग्राम बना के बताता हूँ, दो प्रोग्राम हम देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप। Write a program to perform addition. Write a program to create a class time which has data members as hours and minutes. अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा वहाँ पे hours and minutes, and member functions as get data, then show data, and
friend function as add या फिर sum, whatever you want. To perform the addition between two objects. मैं प्रोग्राम उधर लिखता हूँ वो मुझे कॉपी करने के लिए थोड़ा सा आसान जाएगा. So what is our problem definition? So the problem definition is कि हमें क्या करना है. अब मैं पूरा डिलीट ही मारता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कॉपी करते रहते हैं. और कॉपी हमने करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैसा है, अब ये हावर्स कैसे रहते हैं हमारे 3 हावर्स हो गए, मिनट्स कैसे रहते हैं 60 45. सो फ्लोट वैल्यू नहीं रहेंगी यहाँ पे, तो ध्यान कीजिए. और क्लास का नाम क्या है हमारा, टाइम है. फिर पब्लिक में हमारे गेट डेटा में हम क्या करते हैं, यहीं पे रीड करेंगे. अभी हम लोग ज्यादा प्रोग्राम को बड़े नहीं करते. सी आउट इंटर द वैल्यूज. अब ये वेरिएशन है, आप कुछ भी कर सकते हो. अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आवर्स एंड मिनट्स. यहाँ पे सीन सॉरी मिनट. आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे भी आपको प्रोग्राम बनाना है, दैट इज आवर स्किल. फिर ये शो डेटा के फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो. सी आउट डायरेक्टली यहाँ पे मैं हावर जैसे लास्ट टाइम किया था, हावर वैसे लास्ट टाइम वाला प्रोग्राम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है. और फिर यहाँ पे एडिशन टाइम फ्रेंड लिखेंगे पहले, क्योंकि हमारा फ्रेंड है. फिर टाइम पता है मुझे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो सम, और यहाँ पे टाइम आएगा. तो इसको हम यहीं पे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है फंक्शन. ये क्लास फिनिश हो गया हमारा. और क्लास के बाहर आके हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन के लिए टाइम सम इन ब्रैकेट टाइम कॉमा टाइम. उसके बाद नीचे टाइम टी ले लिया मैंने, जैसे पहले वाला प्रोग्राम था वैसे ही है. टी डॉट आवर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे T1 T2 ले लेंगे. T1 T2 टाइम का T हो गया. T1 डॉट आवर प्लस T2 डॉट आवर. T डॉट मिनट इज इक्वल टू T1 डॉट मिनट प्लस T2 डॉट मिनट. यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा. सो रिटर्न हो गया. और इसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन. सो दैट्स द इंट मेन. टाइम के ऑब्जेक्ट टाइम T1 कॉमा T2 कॉमा. वैसे ही
T1, let's set the values. So see out का मैसेज चल रही है. वैसे तो वहाँ पे है ही वो मैसेज, तो डालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली मैं करता हूँ T1 डॉट गेट डेटा, फिर T2 डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट /n. Let's perform the addition between two time conflicts. यहाँ पे अभी कॉल करते हैं उस फंक्शन को. सो आपको पता है T3 इज इक्वल टू, हमारे फंक्शन का नाम है सम इन ब्रैकेट T1 कॉमा T2. ये T1 T2 अलग है, ये वाले T1 T2 अलग है, और ये वाले T1 T2 अलग है. दीज आर द एक्चुअल्स वन और दीज आर द फॉर्मल्स वन. ये डमी है और ये एक्चुअल्स है. ओके, और फिर मैसेज result of addition. ओके, इवन डॉट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो वही एडिशन किया, तो इसमें नया क्या किया. देखेंगे नया क्या कर सकते हैं. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए कि लाइक फटाफट हमको प्रोग्राम बना के आने चाहिए. एंड दैट इज आवर स्किल, क्योंकि अभी हमने जंप ले लिया है इस तालाब में, तो हमको ही आना चाहिए. लेट्स एग्जीक्यूट. So your time sum in function int main expected semicolon, line number 29. Expected semicolon before T1. इधर तो कुछ भी नहीं है.
सर वो सबसे लास्ट में 2 कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं। यस Q2 was not declared in this scope. Q1 was not declared. Fine. Time is a class name. T1 comma T2 comma T3. T1 comma T2. पब्लिक नहीं है। इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Error expected semicolon before T1. ये किससे कह रहा हूँ? Time does not name a type. Time T करके लिखता हूँ। हो सकता है टाइम और बिल्ट इन कुछ तो भी क्लास नेम होगा, so that's what is creating the problem. So enter the values for hours and minutes. कितना लेंगे? 10 hours and 23 minutes. Enter the values for hours and minutes. So मैं ये वाला डालता हूँ 10 hours. देखो 10:23, 10:26, so your result is 20:49. वो टाइम का इसलिए प्रॉब्लम जा रहा हूँ बिकॉज might be time is a built-in class somewhere, so that's why. Otherwise no error was in the program. So enter the values for hours and minutes. 10:23, then enter the values for hours and minutes. That is for the second object. 10:26. Let's perform the addition between two time objects. Result of the addition 10:23, 10:26, 20:49. Okay. इसको मैं कॉपी कर देता हूँ उधर। I hope you don't have any problem in this program. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो you can ask me. जैसे हम पहले प्रोग्राम किया वैसे ही किया है, इसको कुछ अलग तरीके से नहीं किया। अभी मैं इसमें थोड़ा चेंज लाता हूँ। चेंज मीन्स व्हाट, या फिर इसको कैसे रहने देता हूँ, अभी मैं इसे चेंज करता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसको मैं रन करता हूँ तो रन होने के बाद सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 12 hours and 56 minutes, ओके, और फिर मैंने डाल दिए 12 hours and 75 minutes,
ये रिजल्ट क्या दे रहा है मेरे को, 12 आवर्स प्लस 56 प्लस 12 आवर्स प्लस 75, तो कितना आ गया, 24 आवर्स प्लस 131 मिनट्स. नाउ व्हाट आई वांट, whenever I am having a value that is 24 hours means 1 day, or these minutes like 56 plus 75, so 131 minutes. What I want to do, this 131 will get converted into the hours and minutes. ये 131 को मुझे क्या करना है, hours और minutes में convert करना है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 hours plus 11 minutes, क्योंकि 120 plus 11, तो 120 माना कितने आवर्स होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, और 11 मिनट्स, तो क्या होना चाहिए, 2 जो निकले इसमें से वो 26 हो जाना चाहिए प्लस 11 मिनट्स, ऐसे मेरा रिजल्ट आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या कर सकेंगे, एनी आइडिया? Have you got it? This 56 plus 75, that is going to be 131. So what I want to convert these minutes in the hours and minutes itself. So you know that 131, so 131 divided by 60. 131 divided by 60. So you will have a hours. कितना होगा, 131 divided by 60, तो 62 जा 120, तो 2 आवर्स निकला हमारा. और फिर इसका डिवीजन लेंगे तो हमको हावर्स मिलेंगे, और इसी का मॉडुलस लेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, मिनट्स मिलेंगे. तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, अभी यहाँ पे करेंगे. पहले क्या निकालना है हमको, मिनट्स निकालना है, तो टी डॉट आवर्स निकालना है पहले. तो टी डॉट आवर इज इक्वल टू टी डॉट मिनट. ये हमारा बाद में करना पड़ेगा, पहले हमको आवर्स निकाल लेना पड़ेगा. टी डॉट मिनट के पहले हम एडिशन करेंगे. ठीक है, एडिशन कर ले. कितनी आ गई एडिशन आपकी, 131 आ गई. और 131 आने के बाद फिर हमको क्या करना है, इस मिनट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है. सो टी डॉट आवर इज इक्वल टू टी डॉट मिनट डिवाइडेड बाय 60. कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आया, 131 आया. ये नीचे वाले प्रोग्राम को देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. तो कितनी एडिशन आ गई हमारे मिनट्स की, 131 आ गई. सो व्हाट वी वांट, that 131 we want to break in hour, that is 2, and minute, that is 11. ओके, तो ये हो गया. तो यहाँ पे अभी कितनी वैल्यू आ गई हावर्स की, अगर आपको 131 डिवाइडेड बाय 60 करते हो तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 2. और फिर हमको क्या करना है, फिर हमको मिनट्स भी निकालना है. सो टी डॉट मिनट्स इज इक्वल टू टी डॉट मिनट मॉडुलस 60. अभी निकालते, ये थोड़ा आगे आगे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए. हमारा टी डॉट मिनट कितना आया था, 131 आया था. सो 131 मॉडुलस 60, हाउ मच इज द आंसर, 131 मॉडुलस 60 कितना आएगा, आई होप यू नो इट, दैट इज 11. तो अभी हमको टी डॉट मिनट मिल गया. और इसके बाद अभी हमको क्या करना है, टोटल हावर्स की सम लेना है. सो टी डॉट हावर इज इक्वल टू टी डॉट हावर, ये जो पहले आए टी डॉट हावर इज इक्वल टू टी डॉट हावर, दैट इज 2 प्लस T1 dot hour प्लस T2 dot hour, और हो गया. अभी यहाँ पे कितना है इसका एडिशन, ये पहले की वैल्यू 2 प्लस T1 dot hour आपने जो भी डालोगे 12 प्लस T2 dot hour जो भी आपने डालोगे 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 26. ओके, आपको 1256 1275. यहाँ पे मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि वो वैल्यू कहाँ से आ गई. ये पहले के लिए 1256, फिर दूसरे के लिए 1225, दैट इज गोइंग टू बी 24 131. अब ये मैंने ऐसे डाल दी, तो ये मैंने किया. अब देखो इसका आउटपुट लेते हैं, तो कितना 10 और 12 कितना था
1256, दूसरे के लिए वैल्यू 1275। देखो कितना है 26 प्लस 11। सो हाउ वी हैव डन इट। अब ये जो पहले हमको 131 मिले थे जो एडिशन, पहले हमने क्या की, वेरी सिंपल बताता हूँ। आवर्स और मिनट्स से तो पहले हमने मिनट्स की एडिशन ले ली, तो मिनट्स की एडिशन लिया तो कितना आया 131 आया यहाँ पे। ओके, फिर ये 131 को हमें क्या करना है, हावर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले 131 के हावर्स निकालने के लिए हमने क्या किए, टी डॉट हावर, क्योंकि ऑब्जेक्ट टी है यहाँ पे, टी डॉट हावर इज इक्वल टू टी डॉट मिनट डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो ये हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया यहाँ पे वैल्यू। फिर हमने क्या किया, अब ये 2 हावर्स तो निकल गया, अभी हमें 11 मिनट्स निकालना है इसमें से अलग। तो उसी टी डॉट मिनट को हमने क्या किया, टी डॉट मिनट, अभी हमको लास्ट 11 ही चाहिए ना, मिनट्स कितने चाहिए, 11 ही चाहिए, तो इसलिए हम उसमें कॉपी कर रहे हैं, टी डॉट मिनट में कर रहे हैं। सो टी डॉट मिनट इज इक्वल टू टी डॉट मिनट मॉडुलस 60। तो 131 मॉडुलस 60 आंसर कितना आया, 11 आया। ओके, और अभी ये 2 निकल गया, 11 निकल गया, 11 मिनट तो फाइनल हो गए, लेकिन 2 आवर्स और नॉट द फाइनल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी डॉट हावर इज इक्वल टू टी डॉट हावर जो ऊपर में 2 आ गए हैं प्लस टी1 डॉट हावर प्लस टी2 डॉट हावर। सो 2 प्लस 12 प्लस 12 दैट इज 26। और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होके यहाँ पे आएगा आपका इसमें T3 में, और फिर ये T3 डॉट एसडी का किसी के लिए भी आप कर सकते हो। इवन यू कैन ऐड वन मोर डेटा मेंबर दैट इज अ डे। तो आपके अगर हावर्स भी अगर 24 से ज्यादा होते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट इन डे इटसेल्फ। वो आपको मैं होमवर्क दूंगा एंड यू हैव टू डू इट टुडे ओनली। तो अभी आप इसमें कितने भी डालो, 13 डाल दिया आपने, और ये मिनट्स ले लिया 67, और फिर आपने दूसरी वैल्यू ले ली कुछ तो भी 21, और आपने मिनट्स डाल दिया यहाँ पे 34। देखो क्या आता है रिजल्ट, यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा हो गया। ठीक है, वो एक इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो ये 34 प्लस 1 35, और ये कितने बचे 41। सो दिस इज द प्रोग्राम। कंट्रोल सी। वैसे हमको वेरिएशन प्रोग्राम में लाते आने चाहिए। तो write a program to create class time because data members are assignments. Member function get data stored and frame function is sum to perform the addition between two objects by converting minute into hours. This is the program. हमने 1256 1275 शो डेटा आपको पता है कैसे करते हैं। तो फिर यही था हमारा टाइम। हमने बता दिया 3 चेंजेस फ्रेंड फंक्शन में। एक तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे, फिर वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ क्लास नेम निकाल दो यहाँ पे, और जो आपका फंक्शन डेफिनेशन रहेगा उसमें आपको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करना है आपके फंक्शन को। तो यहाँ पे हम T3 डॉट सम करते थे, तो अभी उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, और ये हमने कन्वर्जन किया, अभी बहुत बड़ा है तो आप देखो। अब ये अलग स्टेप है, अभी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर आपको स्टेप पे छोटा कर देता हूँ। था 131 ब्रेक इन हावर 2 एंड मिनट 11, और ये सब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ओके।